السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف ذہین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: برناباس یوحنا کس نبی کے ساتھی تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کی بچ جانے والی قوم کہاں جا کر آباد ہوئی؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کی بچ جانے والی قوم یمن میں جا کر آباد ہوئی۔ سوال: قرآن شریف کا دل سورۃ یاسین کس منزل میں ہے؟ جواب: قرآن شریف کا دل سورۃ یاسین 5ویں منزل میں ہے۔ سوال: بھیک مانگنا عام طور پر کسی بھی مذہب میں صحیح نہیں سمجھا جاتا، بتائیں کون سا مذہب اسے خاص درجہ دیتا ہے؟ جواب: بدھ مت وہ مذہب ہے جس میں بھکاریوں کو ایک خاص درجہ دیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 36 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 24 سورۃ یوسف میں آیا اور بقیہ دیگر سورتوں میں۔ سوال: سیدہ زینب کا روضہ کہاں ہے؟ جواب: سیدہ زینب کا روضہ دمشق میں واقع ایک مسجد میں ہے، جس میں اکثر مسلمانوں کے مطابق زینب بنت علی کا مزار ہے، جبکہ کچھ سنی ان کے مزار کو قاہرہ مصر میں سمجھتے ہیں اور کچھ کے مطابق سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا روضہ شام میں ہے۔ سوال: بچہ پیدا ہوتے ہی رونے کیوں لگ جاتا ہے؟ جواب: بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان کے چھونے کی وجہ سے رونے لگ جاتا ہے۔ سوال: کیا کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب: زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سوال: کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی۔ سوال: کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: شیطان ساتواں آسمان پر کن مختلف ناموں سے مشہور تھا؟
جواب: پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، ساتویں پر عزازیل، اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے دو اشخاص کون تھے؟ جواب: وہ دو اشخاص مالک بن زنجو اور شیرہ۔ سوال: کس وقت جسم کے اعضاء دھونے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت جسم کے اعضاء دھونے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال: ورسل علیہم تیر ابابیل، اس آیت میں تیر کے معنی کیا ہیں؟ جواب: جھنڈ کے جھنڈ۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تو حج کرنے کیسے جاتے اور ہندوستان میں رہتے ہوئے کتنے حج کیے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ تک پیدل چل کر 40 حج ادا کیے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کون سا پرندہ لے کر ملکہ سبا کے پاس گیا تھا؟ جواب: یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرما بردار تھے، لیکن آپ کا حدود پرندہ آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال کیا تھا اس کو یہی حدود لے کر گیا تھا۔ سوال: کس صحابی کی آواز 1000 آدمیوں کی آواز پر بھاری تھی؟ جواب: غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے جذبہ فدیت سے مسرور ہو کر ارشاد فرمایا: لشکر میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی آواز 1000 آدمیوں کی آواز پر بھاری ہے۔ سوال: ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب: ابو جہل کا پورا نام عمرو بن ہشام تھا۔ سوال: نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا ہے؟ جواب: نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: وہ کون شخص ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے؟ جواب: یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے جن کا نام آصف بن برقیہ تھا، اور یہی وزیر بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کی مقدار سے پہلے ہی لے آیا تھا۔ سوال: قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार की तरफ से टाल मटोल करना जुल्म है, और अगर तुम में से किसी का कर्ज किसी मालदार पर हवाला दिया जाए तो इसे कबूल करे। सवाल: सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठाई जाएगी? जवाब: सबसे पहले दुनिया से शहद की नेमत उठाई जाएगी। सवाल: कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? जवाब: कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। सवाल: फारसी ज़बान में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद किसके तर्जुमे का जिक्र मिलता है? जवाब: फारसी ज़बान में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सादी शराजी के तर्जुमे का जिक्र मिलता है। सवाल: कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? जवाब: कुरान मजीद में 3 मस्जिदों का जिक्र आया है। सवाल: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे निकाह किया? जवाब: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया। सवाल: किस खलीफा के ईमान लाने पर आसमान से मुबारकबाद आई थी? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने पर आसमान से अब मुबारकबाद आई थी। सवाल: 9 ज़िल-हज की फजर से 13 ज़िल-हज की असर तक हर नमाज के बाद जो तस्बीह पढ़ी जाती है इसको क्या कहते हैं? जवाब: 9 ज़िल-हज की फजर से 13 ज़िल-हज की असर तक हर नमाज के बाद जो तस्बीह पढ़ी जाती है इसे तकबीर तशरीक कहते हैं। सवाल: कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करने चाहिए? जवाब: कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने चाहिए। सवाल: तारीखी शाहजहाँ मस्जिद पाकिस्तान के किस शहर में वाक़या है? जवाब: तारीखी शाहजहाँ मस्जिद पाकिस्तान के शहर ठट्टा में वाक़या है। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस सिलसिले के नबी कहलाते हैं? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सिलसिले के नबी कहलाते हैं। सवाल: क्या नमाज जनाजा कज़ा करके पढ़ी जा सकती है?
جواب: جی نہیں، نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی نہیں جا سکتی۔ سوال: حضرت اسرائیل علیہ السلام کس نبی کے دوست تھے؟ جواب: حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست تھے۔ سوال: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جواب: روح قبض کرتے وقت انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ سوال: امت پر 5 وقت کی نمازیں کب فرض کی گئیں؟ جواب: امت پر 5 وقت کی نمازیں معراج النبی کے موقع پر فرض کی گئیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا تعمیر کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ سوال: کس وقت نماز پڑھنا منع ہے؟ جواب: سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ جواب: خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا۔ سوال: سب سے زیادہ لمبے لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب: سب سے زیادہ لمبے لوگ قوم عاد کے تھے۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے کون سا شہر آباد ہوا؟ جواب: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے شہر خسران آباد ہوا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم پورا نہ کرنے پر بچوں کو مار پڑتی ہے؟ جواب: نماز کا حکم پورا نہ کرنے پر بچوں کو مار پڑتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس انسان کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ جھگڑالو انسان کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔
सवाल: जिन लोगों को जहन्नुम में डालने का हुक्म दिया जाएगा और तो उनको किस वक्त जहन्नुम में डाला जाएगा? जवाब: दोपहर के वक्त जहन्नुम में डाला जाएगा। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। सवाल: तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म किस साहबी ने बनवाए? जवाब: तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले धर्म हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनवाए। सवाल: दुनिया में सबसे पहले किस नबी ने मूछें काटी थीं? जवाब: दुनिया में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मूछें काटी थीं। सवाल: मूसा के लफ्ज़ का मतलब क्या है? जवाब: मूसा के लफ्ज़ का मतलब पानी से निकला हुआ है। सवाल: कुरान मजीद में रुकू की निशानी किस अलामत से ज़ाहिर की गई? जवाब: कुरान मजीद में रुकू की निशानी ऐन से ज़ाहिर की गई। सवाल: क्या चीज़ ने हर मुंह खाने से फालिज और लकवा से बचा जा सकता है? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद इसलिए ज़्यादा महबूब था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें शिफा है। शहद निहार मुंह चाटने से बलगम दूर करता है, मैदा साफ करता है, दिमाग को कुव्वत देता है, फालिज और लकवा के लिए मुफीद है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कौन सी सब्ज़ी पसंद करते थे? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्ज़ी में कद्दू पसंद थे। सवाल: पहले ग़ज़वा का नाम क्या है जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी? जवाब: ग़ज़वा बदर। सवाल: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कितनी आयत में है? जवाब: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 4 आयत में है। सवाल: नमरूद पर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब की क्या सूरत आई? जवाब: नमरूद पर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब 60 लाख मच्छरों की फौज की सूरत में हुआ।
सवाल, वो कौन से साहबी हैं जिनकी सूरत में हजरत जबरील अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे? जवाब, हजरत दिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हु की सूरत में हजरत जबरील अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। सवाल, शहदाद की कुल उम्र क्या हुई? जवाब, शहदाद की कुल उम्र 900 साल हुई। सवाल, कपड़ा और चमड़ा रंग करने और ग्लास बनाने के लिए मैग्नीज डाई ऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, कपड़ा और चमड़ा रंग करने और ग्लास बनाने के लिए मैग्नीज डाई ऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, बाग जन्नत के हौज का जिक्र किस सूरत में है? जवाब, बाग जन्नत के हौज का जिक्र सूरत कौसर में है। सवाल, जन्नत के दर्जात कितने हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का कितना फासला है? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम के हरूफ हैं इतने ही जन्नत के दर्जात हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे का तक का इतना फासला है जितना आसमान व ज़मीन के दरमियान है। सवाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सफ़ेद सीसा बनाने के तरीके बयान करने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, केमिकल बनाने और ईजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का क्या नाम है? जवाब, केमिकल्स बनाने और ईजाद करने में बाबाए कीमिया कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, कौन सा इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है? जवाब, ढाका इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है। सवाल, अहादीस के मुताबिक दज्जाल की माँ कैसी होगी? जवाब, अहादीस के मुताबिक दज्जाल की माँ मोटी होगी। सवाल, क्या औरत अपने खावंद को तलाक देने का इख्तियार रखती है? जवाब, औरत अपने खावंद को तलाक देने का इख्तियार नहीं रखती। तलाक देने का इख्तियार अल्लाह ने सिर्फ मर्द को दिया है। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किस नबी के ज़माने में बुखार हुआ था?
जवाब: दुनिया में सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुखार हुआ था। सवाल: साबुन को सबसे पहले किस शख्सियत के लिए बनाया गया था? जवाब: साबुन को सबसे पहले बिल्किस के लिए बनाया गया था। सवाल: ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस सहाबी के ख़ावंद अबू अल-आस गिरफ्तार हुए? जवाब: ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़ावंद अबू अल-आस गिरफ्तार हुए। सवाल: कुरान के पारों की तक़सीम में क्या मसलियत थी? जवाब: एक पारा रोज़ाना पढ़ने से एक माह में पूरा कुरान मजीद मुकम्मल हो सकता है। सवाल: इस्लाम के सबसे पहले मुबल्लिग कौन हैं? जवाब: इस्लाम के सबसे पहले मुबल्लिग हज़रत मसअब बिन उमैर थे। सवाल: अशरा मुबशर में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस नंबर पर वफ़ात पाई? जवाब: अशरा मुबशरा में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने 10वें नंबर पर वफ़ात पाई। सवाल: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने मुखालफत की थी? जवाब: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अबू लहब ने मुखालफत की थी। सवाल: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का कौन सा ग़ुलाम शाम जाते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसफ़र था? जवाब: हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का ग़ुलाम मिस्र शाम जाते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसफ़र था। सवाल: कुरान मजीद में किस शहर का जिक्र किया गया है? जवाब: कुरान मजीद में मक्का शहर का जिक्र किया गया है। सवाल: कुरान पाक की पहली तदवीन कब हुई? जवाब: कुरान पाक की पहली तदवीन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई। सवाल: कौन सा अमल इंसान को अमीर बनाता है? जवाब: ज़कात देने का अमल इंसान को अमीर बनाता है। सवाल: किस बादशाह ने अपनी सगी बहन से शादी की थी?
जवाब, राजा दाहिर ने अपनी सगी बहन से शादी की थी। सवाल, वो कौन से नबी हैं जिनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे? जवाब, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। सवाल, इल्म अदाद और जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, इल्म अदाद और जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाले मुसलमान का नाम याकूब अलकंदी है। सवाल, चौथे कलमे को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं? जवाब, जो बाजार में चलते फिरते एक मर्तबा चौथे कलमे को पढ़ ले तो इसके अमाल नामे में 20 लाख नेकियां लिखी जाएंगी। सवाल, इस्लाम में सबसे पहले जुम्मा कब अदा किया गया? जवाब, इस्लाम में सबसे पहले जुम्मा 1 हिजरी को अदा किया गया। सवाल, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा क्यों कहा जाता था? जवाब, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इल्हामी किताब तौरेत दोबारा ज़बानी लिखवाई थी जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला के बेटे कहलाए थे। सवाल, नबी के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब, नबी के लग़वी मायने गैब की खबर देने वाला है। सवाल, सहाबा कराम में से कौन से सहाबी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे? जवाब, सहाबा कराम में हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल, कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ कौन सा है? जवाब, कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ इकरा है। सवाल, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का वसाल किस सूरत हाल में हुआ? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार हुई और एक रोज़ खादिमा से फरमाया कि मैं गुस्ल करूँगी, पानी रख दो। गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने, फिर फरमाया कि मेरा बिस्तर घर के बीच ही कर दो। बिस्तर पर तशरीफ़ ले गईं और किबला रुख लेट कर दाना हाथ रुखसार के नीचे रखा और फरमाया कि बस अब मैं मरती हूँ, ये फरमाकर विसाल फरमाया। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत हक सबसे पहले किसको दी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत हक सबसे पहले अपने वालिद आज़र को दी।
سوال: کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب: سندھ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سوال: اہل مکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کن القابات سے پکارتے تھے؟ جواب: اہل مکہ آپ رضی اللہ عنہ کو العدل اور الوحید کے القابات سے پکارا کرتے تھے۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ کون سی غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ غذا شہد ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد میں لگے اس کا نام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ سوال: دنیا میں سے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب: دنیا میں سے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سوال: کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ سوال: کیا عورت کے لیے گھر میں گرمی کی وجہ سے بالوں کا جوڑا بنانا جائز ہے؟ جواب: عورت کے لیے گدی پر بالوں کا جوڑا بنانا جائز ہے، لہٰذا گرمی کی وجہ سے اس طرح جوڑا بنایا جا سکتا ہے، البتہ بالوں کو جمع کر کے سر کے اوپر جوڑا بنانا جائز نہیں ہے، یہ اہل جہنم کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے۔ سوال: بیل ذبح کر کے اس پر لکڑی رکھنے کے بعد آگ کا آسمان سے اتر کر اس کو جلا دینے کا موضوع کس نبی سے منسوب ہے؟ جواب: یہ موضوع حضرت الیاس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کتنی مرتبہ بھینچا؟
जवाब: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के कहने पर कि पढ़ो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब पर कि मैं तो पढ़ना नहीं जानता। इस पर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर 3 मरतबा दबाया या भींचा। सवाल: किस सहाबी की वफात पर आसमान हिल गया था? जवाब: हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात पर आसमान हिल गया था। सवाल: खाना काबा के पहले मतवाली कौन थे? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा के पहले मतवाली थे। सवाल: अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस का हुक्म दिया है? जवाब: अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नमाज का हुक्म दिया है। सवाल: कुरान मजीद पहले किस चीज़ पर लिखा गया था? जवाब: कुरान मजीद पहले चमड़े पर लिखा गया था। सवाल: वो कौन सा पहाड़ है जो इंसान से मोहब्बत करता है? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।